Hello, ma'am. Hello. Hi, Priya. Hi, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. I am Priya Gupta, BHMS intern, volunteer at Healthy Women's Tribe, founded by Mr. Veer Modi. Also today, I am so glad to announce that we have launched an exclusive page for our homeopathy lovers. So follow and support our second page, My Health Circle Homeopathy. Without further delay, I welcome you all to our session, Neuroplasticity and Healing, with Dr. Hafiza Malik ma'am. Dr. Hafiza Malik ma'am is a well-known consultant homeopath at Vitality Homeopathic Clinic, Surat. She has an experience of 7+ years of practice in field of homeopathy. She is an associate professor of practice of medicine at Vidyadeep Homeopathic College, Surat. Yes, Priya. Yes, so today we are here to discuss neuroplasticity, right? Yes, So ma'am. this topic is first of all, yes, I would like to thank Modi and your Healthy Women's Tribe. It's a very good initiative. Okay, it is a very good initiative in the terms you are bringing so many female doctors on one platform. Mr. Veer Modi, it is very and it is one of the initiative by a person. So that is a very new thing that we are seeing today. And homeopaths, allopathists, and gynecologists, at least you are bringing on one platform. It is a very recommended work and very commendable work. So keep it up. Okay. So Yes. the topic that we came on, we agreed on the topic was neuroplasticity. So how is neuroplasticity helpful, or what is, first of all, neuroplasticity we will discuss. Yes, ma'am. तो न्यूरॉन्स और न्यूरोप्लास्टिसिटी तो पहले हमको समझना पड़ेगा कि न्यूरॉन क्या है. ठीक है, आई एम ऑडिबल नो? Yes, ma'am. इट इज क्लियर? Yes, ma'am. समथिंग हेडफोन्स? No, it's clear. ओके, सो न्यूरॉन्स क्या है? तो जैसे कि हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं, तो वैसे ब्रेन के जो सेल्स होते हैं न्यूरॉन्स. ठीक है, तो हम एक एग्जांपल है, छोटा एग्जाम्पल, तो जल्दी सबको समझ में आ जाए कि न्यूरॉन क्या है. ठीक है, अभी आप कौन सी सिटी में रहते हो प्रिया? क्या मैम? आपकी सिटी कौन सी है? सिटी आप कहाँ से बिलोंग करते हो? I am from Gaya, Bihar. गया. ओके, सो वी विल अज्यूम दैट बिहार इज अ ब्रेन. एक बॉडी है जिसका ब्रेन है बिहार. ठीक है, इंडिया का ब्रेन है बिहार. ठीक है, तो बिहार के अंदर है गया. गया इज अ सिटी. तो हम ब्रेन का एक पार्ट ले लेते हैं, वो है. इज माई वॉइस ब्रेकिंग? Yes, ma'am, little bit. Okay, should I use headphones? Yes, ma'am, okay. Am I audible now? Ma'am, you're audible, little bit voice is breaking in middle. Okay, should I use headphones? Should I use headphones? Okay, now am I audible? Yes, ma'am. Okay, just now I will have to rewire my headphones, like we are going to rewire our neurons today. Okay, so just a minute, I'll have to rewire it. Okay, it has got entangled. Okay, so I will just not take. Yeah, okay, so will not take much time in entangling. Okay, so these wires, okay, very good example. So these wires, okay,
These wires that are entangled, these are neurons in our brain. जो ब्रेन में हम बोल रहे हैं कि जो न्यूरॉन्स है वो क्या है, एक टाइप के तार है, वायर है। ठीक है, हमको सिंपल याद रखना है कि वायर है। ठीक है, तो वायर जैसे कि हमने बोला कि गया है, एक ब्रेन का एरिया है गया, आपकी सिटी है गया या सूरत है। ठीक है, अभी मैं आपकी पड़ोसी बन गई। ठीक है, आपका घर नंबर है सपोज 301 और मेरा घर नंबर है 302। तो मैं नई नई आई हूँ आपके बाजू में रहने के लिए। ठीक है, तो अभी आपने मुझे क्या किया, स्माइल दिया। ठीक है, एक दिन तो मैंने भी आपको स्माइल दिया। ठीक है, और दूसरे दिन मैंने आपको हाई किया तो आपने भी मुझे ऐसे हाई किया। ठीक है, अभी तीसरे दिन आई विल गिव यू अ समथिंग, अ चॉकलेट और वॉट एवर आई हैव मेड न्यू इन माई हाउस। करते हैं ना हम आजू बाजू के वालों के साथ, नेबर्स के साथ, एक दूसरे को कुछ तो देते हैं टू मेक अ रिलेशन और टू मेक अ बॉन्ड। ठीक है, तो मैंने आपको, तो आपने क्या किया, आप सोचोगे कि इनके पास से मैं लूं या ना लूं। अगर मैंने इनके पास से लिया तो मुझे भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम सोचते हैं, पर आपने ले लिया मुझसे। फिर हम तीसरे दिन मैं आपके घर में आती हूँ तो आप क्या करोगे, मुझे इनवाइट करोगे, ठीक है आइए आइए। ठीक है, फिर आप मेरे घर आओगे चौथे दिन, पांचवें दिन। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, एक बॉन्ड बन रहा है, एक पाथवे बन रहा है। ठीक है, तो ये जो पाथवे बन रहा है दो न्यूरॉन के बीच में, दो सेल्स के बीच में, उसको बोलते हैं हम न्यूरो प्लास्टिसिटी। यू आर गेटिंग इट? यस। ठीक है, तो मैं नहीं हूं और मैंने आपकी सिटी में आके एक नया आपके साथ क्या बनाया, बॉन्ड, एक नया पाथवे बनाया। ठीक है, आप रोज कैसे जाते हो कॉलेज, स्कूल, आपकी कॉलेज अभी तो इंटर्नशिप में जाओगे। ठीक है, तो अभी इंटर्नशिप में आपके पास बहुत टाइम है, आप आराम से जाओगे। ठीक है, तो आप कौन सा रास्ता लोगे, रेगुलर जो कॉलेज जाते हो वो रास्ता लोगे ना। यस ठीक है, हाँ, पर अगर आपकी 4th ईयर की फाइनल एग्जाम है, ठीक है, और ट्रैफिक जाम हो गया वो रास्ते पे, तो आप क्या करोगे, पैनिक होना चालू कर दोगे। हाँ, और आप क्या सोचोगे कि चलो अब मैं इसका शॉर्टकट लेती हूँ। ठीक है, तो आपने क्या करा, न्यू पाथवे बनाने किया, स्टार्ट किया। वैसे ही हमको क्या करना है, हमारे ब्रेन में नया न्यूरोनल पाथवे बनाना हमको शुरू करना है। आर यू गेटिंग इट? यस मैम। ओके, सो हम हमारे बर्थ से स्टार्ट करते हैं। जो बचपन से जब हमारा बर्थ होता है, एक नया न्यूबॉर्न बेबी ले लो। ठीक है, फर्स्ट द चाइल्ड इज बोर्न विदाउट एनी कॉम्प्लेक्स पाथवे। पाथवे तो है, न्यूरॉन्स तो है, पर ये पाथवे अभी जुड़ा नहीं है। ठीक है, तो टिल द एज ऑफ 4 months the baby will not be able to make his own pathway. Okay, जन्म के साथ बच्चा चलने लगता है नहीं, क्योंकि उसके पिरामिडल ट्रैक्स, उसका सेरिब्रम जो फुल्ली डेवलप्ड होना चाहिए, जो राइट हेमिस्फीयर लेफ्ट हेमिस्फीयर जो होना चाहिए फुल्ली डेवलप्ड, दैट इज नॉट डेवलप्ड। ओके, सो व्हाई वी आर टेलिंग, बार बार हम क्यों बोलते हैं कि बच्चों को अच्छी चीजें सिखाओ, बच्चों को स्विमिंग सिखाओ, बच्चों को न्यू एक्सरसाइज। ठीक है, अभी नाउ इफ आई टेल यू के स्टार्ट स्पीकिंग विथ मी इन फ्रेंच, विल यू बी एबल टू स्पीक? नो, क्योंकि हमारी मदर टंग क्या है, आपकी मदर टंग क्या है, हिंदी। हिंदी। और क्या आती है आपको दूसरी लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज? नहीं, मतलब इंडियन। आपकी वहाँ बिहार की कुछ होगी ना लोकल लैंग्वेज। हाँ, मगही, हाँ, तो भोजपुरी। आपको, या सो यू नो दैट लैंग्वेज, बट आई डोंट नो लिटिल। दैट लैंग्वेज। या you know, you understand, right? You यस understand मैम। that language, but I cannot understand that language. Now I can understand Gujarati, but you cannot understand Gujarati. Why? Because when we were babies, we used to hear our mother, father speaking that language, right? So हमारे न्यूरॉन्स ने उसको क्या कर लिया है, पकड़ लिया है, वो लैंग्वेज को हमारे न्यूरॉन्स ने पाथवे बना दिया है। ठीक है, so now you might have heard in this multinational schools and international schools that they are teaching the babies or children more than 2 language, more than 3 language. So क्या है कि अगर भले उसे फ्रेंच जगह पे नहीं जाना है, भले उसे स्पेनिश जगह पे नहीं जाना है, स्पेन नहीं जाना है, but in case if he has to speak with a foreign client or whenever his neurons start to reconnect,
ठीक है, आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल. सो व्हेन आई वाज अ किड, ओके, सो हमारे स्कूल में भरतनाट्यम वाज कंपलसरी. ओके, भरतनाट्यम एंड कराटे वाज कंपलसरी, बट आई वाज नॉट taught or I didn't took interest in folk dance और गरबा. ठीक है, तो अब आज की डेट तक भी मुझे गरबा नहीं आता, बिकॉज आई हैव नॉट प्रैक्टिस इट व्हेन आई वाज अ चाइल्ड. सो मुझे कैसे उसको परफॉर्म करना, दैट आई एम नॉट, माई न्यूरॉन्स आर नॉट गिविंग मी आंसर. Although I am taking help from my friends in when I was in college, but Bharatnatyam, if I see a YouTube video of 5 minutes, 10 minutes, I can imitate it. Okay, so till the age of 4 months, the baby will do whatever he wants to do. रोएगा, हंसेगा, खेलेगा, चिल्लाएगा, whatever you will do, even if you will shout, she or she will smile or giggle or whatever. Okay, but from 4 to 6 months, after 4 to 6 months, the baby, what he will do, he will only answer or he will only behave how his mother and parent will behave. Same way, अगर मदर इज गेटिंग एंग्री, तो वो एंगर को एक उसका स्टिम्युलाई ले लेगा कि अगर माई मदर इज एंग्री ऑन मी, देन आई ऑल्सो हैव टू गेट एंग्री. सो जो आपने देखा होगा कि कैसे 6 मंथ्स के बाद बेबी के एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, बदलते हैं अकॉर्डिंग टू योर एक्सप्रेशन. ओके, आपने एक्सप्रेस किया उसको गुस्सा, तो वो भी एक आपको गुस्सा करेगा. दे स्टार्ट थ्रोइंग टेंट्रम्स आफ्टर 6 मंथ्स. इफ यू टेल देम यू हैव टू उनका फीडिंग छुड़वाना है आपको, देन यू विल टेक सो मेनी मंथ्स, बिकॉज दे हैव डेवलप्ड कि मुझे मदर का मिल्क सक करना है. अब वो एक पाथवे होगा कि ये मेरा खाना है, ये मेरा खाना है, मुझे भूख लगी तो मुझे सक करना है. पर 10 मंथ्स के 6 मंथ्स के बाद 7 मंथ्स के बाद जब आपको अगर छुड़वाना है तो वो बहुत ही हार्ड हो जाए, क्योंकि उसका पाथवे क्या होता है, एक न्यूरोनल पाथवे कड़क हो जाता है. ठीक है, अभी आप एग्जाम है, अगर आपको बोला है कि एग्जाम है, ठीक है, कल आपकी है प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन का पेपर है, ठीक है, तो मैं टेस्ट लेने वाली हूँ आपकी CNS पे, तो आपको टेंशन हो जाएगा. ठीक है, तो क्या होता है, हार्मोन, और दूसरा है हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर. अभी हम दोनों के बीच में, हम दोनों का घर बाजू बाजू में है, बट बीच में क्या है, दीवाल है, दीवाल, एक गैप है. तो गैप को क्या बोलते हैं, साइनेप्स और साइनेप्टिक जंक्शन. ठीक है, साइनेप्स, दो जन के बीच में क्या है, दो न्यूरॉन के बीच में क्या है, साइनेप्स. ठीक है, तो साइनेप्स में क्या होता है, इंफॉर्मेशन का ले दे. मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, आप ले रहे हो, तो ये एक साइनेप्टिक न्यूरॉन के बीच में एक ले दे हो रहा है इंफॉर्मेशन का, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर. ठीक है, तो अभी बहुत सारे न्यूरो ट्रांसमीटर है ब्रेन में, डोपामिन है, सीरोटोनिन है, गाबा है, बहुत सारे अलग अलग न्यूरो ट्रांसमीटर है जो इंफॉर्मेशन ले दे करते हैं. ठीक है, राइट, यू हैव लर्न दिस साइनेप्स. जिसको नहीं पता है, हम एक उनको बता रहे हैं कि साइनेप्स मीन्स दो न्यूरॉन के बीच का जो गैप है, जहां पे इंफॉर्मेशन का ले दे होता है. ठीक है, वहां पे न्यूरो ट्रांसमीटर फ्लो होते हैं जो केमिकल्स होते हैं. अभी नाउ व्हाट इज हैपनिंग, देयर आर आइदर एक्सेस ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर और देयर आर डिक्रीज ऑफ द न्यूरो ट्रांसमीटर. तो हम क्या करते हैं, बाहर से केमिकल इन द फॉर्म ऑफ ड्रग्स, इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन, व्हाटएवर इन द फॉर्म ऑफ, हम बाहर से लेना चालू कर देते हैं और ब्रेन क्या हो जाता है, इम्बैलेंस. ठीक है, तो क्या आने लगते हैं हमको, थॉट्स, राइट, थॉट्स आने लगते हैं. और हम, आपने शायद हमें क्वेश्चन भेजे हैं, ठीक है, तो हाउ टू डील विद डिप्रेशन, how to deal with anxiety, how to deal with social problems like divorce or breakups or death. Okay, तो we will discuss के इनको कैसे हम न्यूरोप्लास्टिसिटी में यूज करें इन इमोशंस को ओवरकम करने के लिए. सो सपोज आपकी एग्जाम है कल, ठीक है, तो आपको क्या हो गया, स्ट्रेस हो गया, टेंशन हो गया. ठीक है, कि अरे बाप रे, कल तो एग्जाम है और मैंने कुछ नहीं प्रिपेयर किया है. तो बॉडी में क्या रिलीज होगा, स्ट्रेस हार्मोन, दैट इज कॉर्टिसोल. कॉर्टिसोल रिलीज होगा
और आपको क्या बोलेगा कि दो चीज है, इधर भाग जाओ एग्जाम से या सामने लड़ो, फाइट और फ्लाइट, दो चीज है। तो कॉर्टिसोल आपको बोलेगा कि ये दोनों में से कुछ करो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, कॉर्टिसोल विल हेल्प यू आइदर परफॉर्म वेरी नाइसली और आइदर विड्रॉ योर परफॉर्मेंस। ओके, अगर एड्रीनालिन रश, एड्रीनालिन ये सुनते हैं ना हम इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, के क्लिफ पे से कूदने से या रिवर राफ्टिंग करने से एड्रीनालिन रश मिल रहा है। व्हाट इज दिस एड्रीनालिन रश? द कॉर्टिसोल इज गेटिंग रिलीज। तो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। अगर आपने बंजी जंपिंग कर लिया, रिवर राफ्टिंग कर लिया या पैराग्लाइडिंग कर लिया, तो क्या लगता है आपको? एक अचीवमेंट वाली फीलिंग आती है, अचीवमेंट वाली फीलिंग, ठीक है, आती है ना। जैसे कि एग्जाम में फर्स्ट आ गए तो अचीवमेंट वाली फीलिंग आती है। तो ये कॉर्टिसोल क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं बॉडी में और एक नया अच्छा वाला पाथवे बनता है, ठीक है। वैसे ही एग्जाम में है, अगर आपने वो कॉर्टिसोल को, जो स्ट्रेस है उसको अच्छे से ले लिया, नहीं मुझे, मैं तो 24 आवर्स में पूरा ही पढ़ लूंगी, रट्टा मार लेते हैं ना हम लोग एग्जाम के अगले दिन, तो कैसे अच्छे से याद हो जाता है। पर वो ही हम 2 महीने पहले नहीं कर पाएंगे, वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि तब स्ट्रेस नहीं है, ठीक है, तब न्यूरॉन्स नहीं बना रहे हैं कॉर्टिसोल को, ठीक है। यू आर गेटिंग इट। सो सिंस द बेबी इज 4 to 6 months, तब से हम अगर उनके दिमाग में ये डाल रहे हैं कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, तो वो एक पाथवे बन जाता है, एक कड़क नेटवर्क, ठीक है। अभी बच्चे ने कुछ गिरा दिया घर में, कांच की चीज गिरा दी, ठीक है, तो अब उसकी मम्मी क्या करेगी? उसको डांटेगी, इफ यू विल डू दिस अगेन आई विल स्लैप यू, आई विल स्लैप यू, आई विल स्लैप यू। और शायद वो थोड़ा बड़ा हो जाए तो 1-2 स्लैप हमको मिल भी जाती है। तो अब दिमाग में क्या बैठ गया कि कुछ भी गलत किया तो आई विल बी रिस्पॉन्सिबल, आई विल बी रिस्पॉन्सिबल, आई विल बी रिस्पॉन्सिबल। ओके, जैसे जैसे अब वो बड़ा होता है, स्कूल में जाता है, ओके, स्कूल में जाता है तो कुछ भी गलत हो रहा है और अगर उसका नाम आ गया उसमें, तो he will again blame himself even though he has not done. Okay, I will also share one case, make me remember in the last part to share the case of asthma, this same thing. Okay, तो उसने उसके ऊपर ले लिया, तो जैसे बड़ा हो गया, कॉलेज में गया, उसका शादी हो गई, तो घर में कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो she will feel और he will feel मेरी वजह से हो गया, मेरी वजह से घर में सब दुखी है, मेरी वजह से मेरा हस्बैंड या वाइफ या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड दुखी है, आई एम द थिंग, आई एम द थिंग, ठीक है। तो वो न्यूरोनल जो पाथवे जो है उसका एकदम स्ट्रांग हो गया है, खुद को ब्लेम करने वाला, सेल्फ गिल्ट, सेल्फ पिटी, और वो बढ़ते 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 इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है कि कुछ भी स्टिमुलाई आता है वो अपने आप पे ही ले रहा है। कुछ कंपनी का परफॉर्मेंस खराब हो गया तो मैंने अच्छा नहीं परफॉर्म किया होगा, अगर एग्जाम में फेल हो गए, एग्जाम तो ओके, he knows that he has not prepared, but then even if he has performed good he will feel that I have not performed good. ओके, सो परफॉर्मेंस एंजाइटी हो जाती है, स्टेज फियर हो जाता है, सेल्फ गिल्ट, और ये इतना स्ट्रांग हो जाता है दैट इट विल प्रोड्यूस अ बिग डिजीज। यू हैव सीन, यू माइट हैव हर्ड, रातों रात कैंसर हो जाता है? नो। रातों रात डिप्रेशन आ जाता है? नो। रातों रात आपको पैनिक अटैक्स आते हैं? नहीं। दिस इज अ क्रॉनिक डिजीज, बहुत सालों से आपको एक का एक आपका पाथवे जो है वो बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, और वो एक दिन जाके बहुत स्ट्रांग होके वहां पे डिजीज क्रिएट कर सकता है। नाउ शुड वी मूव टू द क्वेश्चंस और शुड वी डिस्कस मोर अबाउट? हमारे क्वेश्चंस आपने भेजे हैं, आप, सो व्हाट शुड वी डू? Is it clear or still? No, ma'am, it is clear. Yeah. Anybody else? If you have any questions, you can send in the comment box. Okay, so healing part. तो healing part क्या है? तो जब डिप्रेशन हो रहा है तो जो हैप्पी हार्मोन है सीरोटोनिन, इट इज नॉट गेटिंग रिलीज इन योर बॉडी, तो बाहर से हम ड्रग्स देते हैं। जो लोग हमारे पास डिप्रेशन के पेशेंट वो ऑलरेडी ये ड्रग्स लेके आते हैं, देन ऑल्सो दे आर नॉट फीलिंग वेल और फीलिंग हैप्पी।
So what you have to do as a doctor or as a practitioner or as a even as a friend, as a family, what you can do. Am I audible? Yes, ma'am. Yeah. Yes, ma'am, you are audible. Okay. So there was some disturbance from yeah. So क्या करना है आपको? आपको जो ये सब बुक्स लिखी गई है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ हीलिंग, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, ये सब जो मार्केट में पॉजिटिविटी, व्हाट इज ऑल दिस थिंग? Okay, sometimes we should sit and listen. Mindfulness, meditation, what is all these things? So this is only a way to create a new neuronal pathway. एक नया नेटवर्क आपको आपके दिमाग में बनाना है. आपको कुछ भी नहीं करना. It is very easy, but if you realize कि where you are going wrong, okay, then you will be able to make a new pathway, right? इफ यू आर नॉट नोइंग, अगर आपको पता ही नहीं है कि ये सेल्फ गिल्ट है, ये सेल्फ क्रिटिसिज्म है, ये सेल्फ लोथिंग है, देन हाउ यू विल रिमूव इट. ओके, सपोज एक कॉमन एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं. आपका थोड़ा हैंग हो रहा है. कैन यू हियर मी? या, यस मैम. ओके, सो इफ समवन इज कमिंग एंड आस्किंग यू, आई वांट टू क्विट सिगरेट. ओके, तो सिगरेट क्या है? Cigarette is nicotine. Okay, cigarette है, whatever else in the form of tobacco is the chemical is nicotine. तो nicotine क्या है? जब it will go to the neurons and get shoot in the neurons, दो neurons जब connect होएंगे तो nicotine जो है it will give a pleasurable feeling. So थोड़ी देर के बाद the person will feel okay, it's very nice sensation. Okay, so other neuron will start asking for same sensation and the neuron will release a happy sensation or happy hormone, that is serotonin. So एक puff लिया so he will feel very good, serotonin release हुआ, dopamine release हुआ, सब कुछ एकदम अच्छा लग रहा है. फिर दूसरे दिन अगर एक puff लेगा तो एक puff से मजा नहीं आ रहा है, 2, 3, 4 और he will become a chain smoker. Okay, so now you have to, he is asking, I want to quit cigarette, I want to quit alcohol. So if he is willing, okay, there are many people who are, families are coming, कि मैडम इनका, मेरे हस्बैंड का छोड़वा दो, मेरे बच्चे का छोड़वा दो. That is very difficult, that is next to impossible if he is not willing to do, because I cannot create a pathway in your brain. You have to create a pathway in you. I can just give you medicine or I just can give you a therapy. Right? So what we have to do, we have to give the person something in place of smoking. ठीक है, medicine दो. If you are feeling like drinking or smoking, use this medicine. So एक बार अगर उसने कंट्रोल कर लिया, अगर मन हुआ सिगरेट पीने का, उसने कंट्रोल कर लिया तो न्यूरॉन्स इतना दूर जाएंगे. ठीक है, जो कड़क पाथवे बन गया है स्मोकिंग वाला, जो एकदम एंटेंगल हो गया, वो थोड़ा सा दूर जाएगा. 2 बार उसने कंट्रोल किया, हाँ, पर दूसरी बार में उसे मन हो गया तो उसने शायद पी लिया थोड़ा सा, इतना, तो वापस से नजदीक आ गया, तो वो वेस्ट हो गया. बट अगर 28 डेज या एटलीस्ट 2 वीक्स वो रुक गया तो थोड़ा सा ढीला पड़ेगा साइनेप्स. ठीक है, और अगर 28 डेज या 30 डेज he is away from nicotine, so all the nicotine level from the body, from the blood, it will get released and he will start controlling himself. Okay, so जैसे न्यूरोप्लास्टिसिटी हुई वैसे आपको उसको दूर भी कर सकते हो इन बैड हैबिट्स. ठीक है, अगर आपको 6 बजे उठने की आदत नहीं है तो आप क्या करोगे? अलार्म बंद करके सो जाओगे. बट हमको सबको पता है कि सुबह में जल्दी उठना अच्छी बात है, एक्सरसाइज करना अच्छी बात है, बट देन वी आर नॉट एबल टू डू बिकॉज वी आर नॉट फंक्शन इन दैट वे. हमारे न्यूरॉन्स वो इसमें फंक्शन नहीं है. हाँ, बट अगर बोल दिया कि आपकी कल वाइवा है, 7 बजे एग्जामिनर आ जाने वाले हैं, तो आप जाओगे? यस मैम. यस, आप जाओगे. ठीक है, क्योंकि वो एक डू और डाई वाली सिचुएशन है, कॉर्टिसोल वाली, स्ट्रेस आ जाएगा अगर नहीं जाओगे. ठीक है, बट वही चीज हम अपने आप से भी कर सकते हैं. ठीक है, हमारी कल एग्जाम है, सोच के हम उठ सकते हैं. कल हमको कल ट्रेन पकड़नी है, ये सोच के हम उठ सकते हैं, एंड देन वी कैन गो टू एक्सरसाइज. ठीक है, तो हम हमारे ब्रेन को ऐसा फंक्शन कर सकते हैं
कि कल सुबह का हम अलार्म या रिमाइंडर रखेंगे और हमको ट्रेन पकड़नी है. ऑल्दो वी डोंट हैव टू कैच द ट्रेन, वी हैव टू गो टू अ वॉक. Okay, and the magical fact is, if you just use your neuroplasticity or the exercise that are used in neuroplasticity only for 1 minute in day, you can increase your efficiency up to 37 times. Okay, so Yes, if ma'am. you want to increase your efficiency with 37 times in 30, multiply by 37, you just imagine how much good work or how much successful you can become. Okay, you have heard this coaching for businessmen, coaching for billionaires, how to become a billionaire, how to become this, how to become healthy, how to lose weight in 10 days, how to do this. All this is training your brain. First you have to train your brain to do such things, and then you will see result in your body, or you will see result in your financial situations. Okay, if you are not training your brain, you will not see result anywhere. ओके अभी कॉमन एग्जांपल, बहुत ही कॉमन एग्जांपल हमारे दोनों के इंस्टाग्राम पे आया है. डिप्रेशन है, ब्रेकअप है, डेथ है. ठीक है, तो अभी ब्रेकअप हो गया है किसी का, ओके, या डिवोर्स हो गया है. वी हैव मेनी डिवोर्स पेशेंट्स. ओके, सो देन व्हाट वी हैव टू टेल देम. ओके, अच्छी बात है डिवोर्स, ऐसा तो नहीं बोल सकते हम. ठीक है, डिवोर्स हो गया, अच्छा बहुत अच्छी बात है. नो, इट इज रॉन्ग. ओके, डिवोर्स होना रॉन्ग बात नहीं है, बट डिवोर्स हो गया है, पर फिर भी आप उसके बारे में सोच सोच के परेशान हो रहे हो. डिवोर्स लेना आपका डिसीजन था या सामने वाले का डिसीजन था. यू हैव to agree on that. Okay, so now continuously thinking about that will worsen your condition. So what we have to do, if the patient is in anxiety, stress or depression, we call them every week and counsel them. Okay, we have to create a new pathway. So we give them exercises, how to come out of this, how to create new. I have also a big library in my clinic, and there are many books, so for healing purpose. So I give them books. In 1 week you have to finish this one book. Okay, so reading book is a very best exercise for increasing your neuroplasticity or creating. Why? Because whole day what we are doing, we are scrolling our phones. Okay, we are using social media, we are using Instagram or YouTube, whatever. तो Instagram, YouTube ये सब देख के she or he will feel more worsened. The situation will deteriorate. Okay, so first of all we have to tell them that don't see contents that are self-harming you. Okay, so detaching a old pathway, ये again pathway को ढीला करना है. दुख वाला पाथवे है ग्रीफ. अब राइट ब्रेन है और लेफ्ट ब्रेन है. ठीक है, तो राइट ब्रेन एंड लेफ्ट. राइट ब्रेन इज मोर रैशनल. नहीं, डेथ हो गई है तो रोना तो पड़ेगा. ठीक है, डेथ हो गई है तो हमारे यहाँ तो डेथ वाला जो है सिचुएशन, उसको कितना वीक तक हम चलाते हैं, 1 वीक 2 वीक, कहीं कहीं तो महीनों तक उसको ग्रीफ को प्रोलॉन्ग करते हैं. ठीक है, okay, so prolonging the grief is not the solution. Okay, you have to be sad or you have to express your loss. Okay, being expressive. किसी के डेथ हो गई, हाँ जाके आप उनको ग्रीफ आपका एक्सप्रेस कर रहे हो, that is very good, but then increasing the grief is not a good thing. Okay, we have medicine, right, in homeopathy grief के लिए. सडन शॉक, सडन ग्रीफ, हम जाते हैं और देते हैं उनको मेडिसिन जिनके घर में डेथ हो जाती है. बट वो भी एक टाइप की न्यूरोप्लास्टिसिटी है. हम इन नेक्स्ट होम्योपैथिक पार्ट व्हेन विल डिस्कस इज. बट व्हाट यू हैव टू डू, कि इतना स्ट्रॉन्ग हम पाथवे बना देते हैं ग्रीफ का कि इवन आफ्टर 2 months 3 months वो पाथवे ढीला नहीं पड़ रहा, वो और स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है. I have lost my loved one. So now what you have to do, first you have to accept that you have lost someone. Okay, and then you have to create. Brain does not know reality between true and false. Okay, same thing you will repeat in what? Dreams आ जाते हैं. कोई एक्सपायर हो जाता है हमारे घर में तो उनके सपने आने लगते हैं. ठीक है,
तो व्हाट इज ब्रेन में क्या है, लिम्बिक सिस्टम है. तो लिम्बिक सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग अ 3D इमेज. एक 3D इमेज बना देता है ब्रेन में. जैसे कि हम अभी सब कुछ देख रहे हैं, तो वो एक 3D इमेज बन रही है हमारे राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन और सारे न्यूरॉन्स की को रिलेशन की वजह से एक 3D इमेज बन रही है. ठीक है, तो वो इमेज बन रही है हमारे कब, नींद में, सोने में. तो वो हमको लगता है वो ड्रीम्स है. REM स्लीप एंड नॉन REM स्लीप. ठीक है, तो तब हमारी क्या होती है, REM इमेज जो स्लीप में जो बनती है लिम्बिक सिस्टम से, तो हमको लगता है कि पर्सन इज लिविंग, पर्सन इज टॉकिंग विथ अस. होता है ना, वी आस्क इन केस टेकिंग, राइट. केस में मेनी पीपल टेल कि जो इंसान कभी कभी दे आर अलाइव एंड देन यू सी देम एज dead person, okay, and sometimes who are dead you see them as alive, okay, and you talk with them. And even when someone is listening to your dreams or someone is sleeping next to you, they will tell in the next morning that you were shouting or you were talking or you were perspiring in sleep, okay. So body and neuron does not know, okay, this is a dream or this is a reality. Okay, so you have to make a network or you have to make a new pathway that you have to realize, okay, the person has gone and now what we have to do is to face the reality. Okay, so what you can do, you can write something good about them, you can yes, the network. Am I audible? Yes, ma'am. Yeah. So what you can do something good about them, you can write something good about them, you can learn something good from them or the activities that they loved, okay, you can do it, okay. So that is the way to perform a new pathway, a new connection. Sitting and crying is okay, you will remember somebody, or then so you will remember the loss, and crying is not a bad thing, okay. Whenever we take case, 80% of patients, they will come and when we ask them about their past or ask them about their pain, they will start crying, okay. So crying is one of the good way to break your old path, to break your old neuronal pathway, okay. We also have people who have lost their loved ones 2 times. They have lost their parents, husband. 2 times they have got divorced. So, and then also still they are hale and hearty. So how they are coping up? There is some disturbance, I think. No, ma'am. Some voices, background, some voices is coming. Voices are coming. Yeah, now it is. Is it because of mine? Okay. So even there are some exercises. Voice आ रहा है कुछ तो. 1 minute, ma'am. Please continue, ma'am. Yeah. So this way you have to create a new pathway. There are many exercises, okay, to increase your neuroplasticity. We can also discuss later, but I will tell you one case. Asthmatic patient, okay. So we will think that this is a case of asthma. So we will give them so many medicines, all asthma related, Blata and everything. But then even after taking so many allopathic medicine, even after taking our medicines, why she is not getting better? So I asked her what was the worst thing that has happened. She's a small little girl in 9th standard. You can imagine what wrong can happen to a 9-year-old girl. So then also I asked कि क्या हुआ है, मतलब you have something, you have some problem, then you can share with me. So she told that in 8th standard or 7th standard, some girl humiliated her friend in her class. Okay, she humiliated her and the teacher gave all the blame on this girl. And then what she had to do, the teacher shifted her in another division.
सो उसको उसके क्लास में से निकाल दिया किसी और की वजह से, एंड द शी थॉट दैट कि मेरी गलती नहीं थी, फिर भी मुझे मेरे क्लास में से उस लड़की की वजह से मुझे निकाल के दूसरे क्लास में डाल दिया. सो दिस इम्पैक्टेड हर सो मच, she started having the symptoms of asthma. Okay, asthma means she was not able to sleep in supine position. She had to sit whole night in this position, and then only she used to sleep and take pumps, nebulizer, everything. Okay, Asthalin, Budacort, everything. Then from this incidents we gave her medicine. Medicine we can discuss in our homeopathic page, homeopathic part. But then this small incidents was so much keeping her in her brain, okay, that she started the symptoms of asthma. And then after asthma was cured with our medicines, they told me that she was also having epilepsy, and she again had this uh, attack of epilepsy. So same medicine that help her in asthma help her in epilepsy. So one incident can affect whole your body. Are you getting it? One small incidence. So one small incidence will, yeah, you have voice is coming from your part. Yeah. Yes. So one small incident, how lethargic it can be. So it same happens in cancer. So now so much research there in cancer patient. So if you take a case of cancer patient, no cancer patient will have a history of suppression. Yes. Yes, so the time was over. No, ma'am. Yeah. Okay. So, yes, am I audible? Yes, ma'am, you're audible. Yeah. So, any other questions you want me to discuss? What were other questions that we got on our page? Ma'am, we have received some of the responses like overthinking and impulsive nature, procrastination, negativity. Yes. Okay, so negativity and positivity, these are very most discussed topics. Okay, the frequent keywords that are coming in Instagram or in our daily life, how to become positive. Okay, so I will discuss something, a very classical thing that happens with every one of us. Okay, so depression है या overthinking है. तो overthinking means you are thinking again and again about something. Okay, so for example, if you want to do something new, okay, so you will think, I will be successful or it will be a failure. I will be successful or it will be a failure. So you are doing a hypothetical game, brain game you are doing in your mind. But unless and until you will go there and do and see the results, how will you know? Okay, so doing the thing at a present moment, staying in the present moment is the first step towards neuroplasticity or increasing your pathway or increasing your performance. Okay, performance को increase करना है तो you have to be in your now.
Okay, you don't have to be in your hypothetical situation, in your future situation, or in your past situation. Many people जो depression के patient है, if we ask them कि what is this that is bothering you, so they will start from their childhood or their adulthood or their teenage कि इसने मेरे साथ मेरी टीनेज में ये किया था, मेरी मदर इन लॉ ने मेरे साथ ये किया था जब मैं शादी करके 20 साल पहले आई थी, ठीक है, या मेरे हस्बैंड ने चीट किया था जब मैं प्रेग्नेंट थी, ठीक है। तो ये इतने 20 25 साल पहले वाली बातें स्टिल वाई दे आर स्ट्रॉन्ग इन योर माइंड, क्यों वो सब सोच सोच के बार बार रोना आ जाता है, क्योंकि वो पाथवे इतना स्ट्रॉन्ग बन गया है। किसी ने भी आपने अगर मूवी भी देख ली, ठीक है, मूवी भी देख ली आपने, तो आपको रोना आ जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा कोई भी सीन जो आ गया जो आपकी लाइफ के साथ रिलेटेड है, then you will start weeping, or even if we ask some questions to patient, they start weeping literally. The tissue boxes are getting finished because of this, okay, because of the past dwelling on the situations. Okay, we have this rubric also in homeopathy, right? Okay, and sometimes that may not be true, okay, sometimes it is what delusion, वो बात सच हो भी नहीं सकती, ठीक है। किसी ने आपको धोखा नहीं भी दिया पर आपको लग रहा है कि उसने धोखा दिया, तो वो धोखे वाली जो फीलिंग है वो हमेशा आपके मन में बैठ जाएगी, धोखा धोखा धोखा, ओके। सो दैट धोखा will become a disease in your body, okay, and then it will create a disease. So to remove that betrayal feeling is the work of a doctor, is the work of a counselor, or a work of whatever you go for help. Even you can counsel your friends, you can counsel your family, but it is very difficult to counsel your near and dear ones, okay. So you have to send them to a trainer, or you have to send them to a psychiatrist or psychologist or homeopath, okay. So being a homeopath, it is a very great what you say, our choice of career is very good, that we can also counsel our patients because we know the life history, okay. And the wonderful thing is, if an anxiety, then in any stage of life you are going to have anxiety, but to react to that anxiety, that is under your control, okay. So now if you have, if he or she has seen their parents having panic attacks, okay, so they will know that something is happening, and when they will feel some situation outside some circumstances like that, then they will also start having panic attacks, okay. But if they are aware of this thing, that no, I have to overcome this, I don't have to fall in the trap, okay, then, and if they have a good atmosphere, a good helper or a good trainer or a doctor, and they know what are the exercises to not to let this panic attacks become hard, okay. So अगर बच्चा है और आप उसको समझा दो, छोटा बच्चा है कि नहीं, this is nothing, it is just एक एग्जाम है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, हम अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, हम होमवर्क करेंगे, और एंड देन यू विल कम फर्स्ट रैंक। बट अगर डरा रहे हैं, नहीं नहीं पढ़ ही लो, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, फेल हो जाओगे फेल हो जाओगे, तो ही विल फेल, ओके, you are getting it. If you are giving inputs okay, you will fail, you will fail, you will fail, then he is going to fail, he is going to fail in his life also. But even if the person is weak, okay, बहुत ही डल बच्चा है, बट उसको अच्छा इतना अच्छा एटमोस्फियर मिल रहा है कि पुशअप करने वाला, मोटिवेट करने वाला, तो इवन अ डल पर्सन will tremendously they will come out with flying colors, okay. So रोल अपना तो रोल है ही, एनवायरमेंट का भी रोल है. When your child is growing, you have to give him a good friendly environment so they can come out with flying colors. You see this Virat Kohli and Hardik Pandya and all this giving strokes पे strokes, 50s पे 50s, okay, कोई कोई मैच में they will they are going a very good performance, कोई कोई मैच में very dull performance, okay. हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम आ गया है, बैटिंग में मोमेंटम आ गया है, बैटिंग में मोमेंटम आ गया है, तो व्हाट इज दिस मोमेंटम,
ओके, देयर न्यूरॉन्स हैव कनेक्टेड कि अच्छा कोई भी डायरेक्शन से बॉल आएगा हम तो मारेंगे सिक्सर ही, हम तो मारेंगे फोर ही। बट कोई कोई मैचेस में आप देखो 0 पे आउट, 1 पे आउट, 2 पे आउट। ओके, वी सॉ दिस सीरीज रिसेंट। तो क्या है, दैट डे देयर न्यूरॉन इज नॉट गेटिंग अटैच। वो दिन उनको शायद मोटिवेशन नहीं मिला है, वो दिन कुछ भी गलत हो गया है, एंड दे आर नॉट गेटिंग देयर न्यूरॉन्स कनेक्टेड। ओके, ऑल्दो दे हैव बीन ट्रेन्ड, but that day their neurons are not getting connected. They might have done less exercise on the previous day, or they might have not got motivation from each other or whatever, from whatever coach or whatever. So वो जो तार जुड़ने चाहिए, रीवायरिंग, न्यूरोप्लास्टिसिटी की डेफिनेशन है रीवायरिंग योर ब्रेन। ओके, तो वो रीवायरिंग जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। ओके, देर आर, एंड फर्स्ट very easiest way is meditation or any type of physical or mental exercise. Yes. Okay, so physical or mental exercise is a very common way of increasing your neuroplasticity, and research have showed, there well published paper you will get. Okay, कि अगर कोई भी इंसान इस यूज कर रहा है, सपोज इफ आई देयर इज अ रिसर्च फॉर 2 chronic वीक्स, एवरी 3 days, वीक में 3 दिन 15 दिन के लिए हम अगर बैलेंसिंग एक्सरसाइज करें, एक पैर पे खड़े होके बैलेंस करने वाली एक्सरसाइज करें 15 दिन तक, 20 दिन तक, एवरी 3 to 4 days अ वीक। ओके, देन बिफोर दिस एक्सरसाइज जो आपकी ब्रेन इमेजिनिंग है, MRI, CT स्कैन और EEG, एंड आफ्टर दैट 15 दिन द ब्रेन का जो एरिया दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंसिंग, ठीक है, बैलेंस जो कर रहा है आपके ब्रेन में जो एरिया है, दैट एरिया इज इंक्रीज्ड, ग्रोन इन साइज। तो क्या है, वहां पे नए न्यूरॉन बन गए, वो नए पाथवे बन गए। जो लोग ब्लाइंड होते हैं, हैव यू सीन ब्लाइंड पीपल? हैव यू सीन ब्लाइंड पीपल? यस। ओके, सो ब्लाइंड पीपल जो होते हैं उनका हमने देखा है कि उनके सिक्स सेंस बहुत अच्छे होते हैं, उनके सेंसेशन बहुत अच्छा होता है, उनका कुछ भी दूसरा भी टच सेंसेशन बहुत अच्छा होता है। Recently I gave this session for blind people, menstrual hygiene. So I was very nervous कि how I will teach the blind children about menstruation. It is a very hard task, but unbelievably they were more enthusiastic than me. Okay, and with their sign languages, with audio visual clips, and with paper and pen, they asked me questions, and I was able to, in a 1 hour session, I was not even able to solve their questions, so many questions they had. Okay, blind people, blind girls especially. Okay, so with their touch sensation are so much well developed. Why? Because the area of the brain that is their optical neurons that have get shrinked, but their touch sensation, their sensory and motor area, they have grown. ओके, सो जो लोगों को ब्रेल सिखाई, ब्रेल लैंग्वेज जो होती है, तो उनको जब ब्रेल सीख, दिस इज रिसर्च आई एम टेलिंग यू। ओके, तो बिफोर टीचिंग देम ब्रेल लैंग्वेज, टच करके जो डॉट 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 वो लोग करते हैं, उसके पहले का MRI और वो लैंग्वेज सिखाने के बाद वाला MRI, दैट वाज वेरी डिफरेंट। Okay, there are many studies, you can see the research paper online. Okay, before practicing this neuroplasticity or meditation, you have seen this yogis or meditation and saints doing this meditation in -degree temperature. हम जहाँ पे सिर्फ घूमने भी नहीं जा सकते हिमालयाज में और माउंटेन रेंज, वहां पे वो लोग विदाउट क्लोथ्स दे आर टेकिंग डीप इन द आइस कोल्ड वाटर, ग्लेशियर के पानी में वो लोग डुबकी मार रहे हैं। हाउ? बिकॉज दे हैव डिसेंसिटाइज देयर न्यूरॉन। ओके, जो पेन वाला जो पाथवे है उसको उन लोग ने कट कर दिया है। ठीक है, सोल्जर्स है, सोल्जर्स जो लोग लड़ने जाते हैं, तो उनको ब्रेन ट्रेनिंग देनी पड़ती है, फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ उनको ब्रेन ट्रेनिंग देनी पड़ती है। उनको एक वीक तक बंकर के अंदर सोने की, अंधेरे में सोने की, विदाउट फूड, विदाउट ट्रेनिंग दी जाती है, सो दैट ब्रेन के जो न्यूरॉन्स है वो पेन वाले न्यूरॉन्स कट कर देते हैं वो लोग।
ठीक है. और वन मोर इज फैंटम लिम्ब एग्जाम्पल. यू नो फैंटम लिम्ब. फैंटम लिम्ब मीन्स अगर किसी का हाथ कट गया है एक्सीडेंट में या सोल्जर का, तो इवन आफ्टर ऑपरेशन हम जो कट कर देते हैं सड़ा हुआ पार्ट, तो भी उनको लगता है कि यहाँ पे पार्ट है, क्योंकि वो न्यूरॉन्स मैसेज भेजता ही रहता है, क्योंकि 20 साल 30 साल वो हम उस हाथ के साथ रहे हैं. ठीक है. सो दैट इज अ फैंटम लिम्ब एंड दैट सेंसेशन आर ट्रू. ठीक है. बट ऑल्दो द हैंड इज नॉट प्रेजेंट, द सेंसेशन आर ट्रू. Okay, so that is phantom limb and that is the role of neurons or neuroplasticity, and the topic is very big, so we can keep on discussing, but because of time limitation, yes, any other questions we can entertain in our DMs, okay, or your page or my page. Okay, ma'am. Yes. Thank you, ma'am. Yes, it was nice talking to you. And best of luck, Healthy Woman Tribe, for your efforts. Okay. Yes. Thank you, ma'am. Yeah. Was Okay. very insightful session. Yeah. Thank you all for watching us. You can stay tuned with us, and we will keep coming with more interactive and informative Insta lives like this. And you can follow us on Instagram as well. Our search for Healthy Women's Tribe, and you can get access to all our videos over there as well. So keep supporting us. We are so grateful for all the love and support that we receive. Thank you. Bye. Bye, ma'am.